सो लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। तो अब ध्यान से सुनो, लाइक तुम 2025 ग्रेड हो, राइट? यस। 2025 ग्रेड हो, वीआईटी से हो, बट फिर भी इश्यूज हो चुके हैं और अभी स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है और अभी ऑफ कैंपस जॉब चाहिए और मिनिमम कम से कम आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख ही चाहिए रहेगा, उसके नीचे अच्छा लगने नहीं वाला है, राइट? यस। तो अब बुक में लिखो कि बहुत कुछ करना है। सबसे पहले तो लिखो कि एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट, लिख दिया एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। हाँ, तो अब बात क्या है कि यहाँ वीआईटी से अच्छा तो इंटर्न मिला था, पर वो इंटर्न वाला आपने यही बोला कि उनका सिचुएशन बदल गया, अभी एंड में वो लोग सबको मोस्टली पीपीओ नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए आपको दूसरी ऑफ कैंपस जॉब ढूंढनी पड़ रही है, राइट? ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट में लिख दो कि कहीं भी कोई भी, लाइक नो मैटर विच टाइप ऑफ कंपनी इट इज, लाइक 1 LPA, 2 LPA, 3 4 5 6 10 20 30 40, you are going to apply everywhere without any expectation of the package. Clear? Now, why am I telling you that? Because the thing is that it can happen that you do not have any offer after 1 to 2 months, and then the gap can start increasing. And if you have more gap, none of the recruiters will take interest in you. Is that concept clear? So I do not want any kind of gap to be created. That's why I will be guiding you to, apply in service based mass hiring also, and then product based startup also, then the mid size startup also, and then the product based companies also, and then the USA remote product based startups as well. I will be telling you to apply and try for at all these places. Clear? Irrespective of the package, because you just need to get more and more interviews, or else it can happen that your mind starts feeling depressed, and I don't want that to happen. Clear? Because basically a certain kind of momentum is needed. If you only apply to good companies, it can happen that you're getting interview only once every 2 3 months, and that can lead to a lots of demotivation and a big gap. Clear? So these things are clear in your mind now, right? What is the next? Then the most important thing to do. See, this is your resume, right? Here you are mentioning the recent company internship. Can you tell me on all what technology did you work there? Yeah. Okay, okay. And apart from that, you do not have that type of intern apart from that recent internship, right? So just put your SD intern at IT Job Access. Clear? The one internship which you did at IT Job Access and year of the recent company. I hope you know how to put these two here nicely, right? Yeah. So this thing is clear now. The problem is that I have to decide how much work should I make you do. So you are free the whole day, right? Yes. So let's give you a difficult plan. So see, what you can do is that you can you can make two type of resumes. Okay, clear. One resume should be such that it can easily get shortlisted for Mon plus Python based or mixed role of Mon or Python, or only Mon or only Python. Clear. तो जब कहीं पर लिखा होता है ना, लाइक पाइथन डेटा इंजीनियर, या लाइक सिर्फ पाइथन रोल के लिए हायरिंग हो रहा है, या फिर मान का लिखा होता है कि सिर्फ नोड जेएस मोंगोडीबी रिएक्ट वगैरह इनका हायरिंग हो रहा है, तो एक रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो मान और पाइथन इनके मिक्सचर या इनको सेपरेटली भी हायरिंग हो रहा है तो शॉर्टलिस्ट हो जाना चाहिए। क्लियर? ओके। आईटी जॉब एक्सेस का मान का काम और रिसेंट कंपनी में भी भले ही पाइथन में काम किया है, तो भी तुम कुछ कीवर्ड्स ऐड करो, लाइक रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, मोंगोडीबी, इसमें याद से ऐड करना। क्लियर? क्योंकि मन की ओपनिंग पाइथन से बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा फैब्रिकेशन करना पड़ेगा। फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स एंड कंटेंट मैं आपको पर्सनली भेजूंगा सेशन होने के बाद। क्लियर? ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर। अब जो मान प्लस पाइथन वाला रेज्यूमे होगा, उसमें प्रोजेक्ट्स कौन से आने चाहिए वो लिख दो। M1 M2 दो मंथ स्टैक के एकदम हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स चाहिए विद लाइव लिंक एंड द गिटहब लिंक। क्लियर? तो आपकी जब डेव मेंटोर से मीटिंग होगी सैटरडे को, तो वो आपको गाइड करेंगे। लाइक अभी तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के अंदर बहुत हाई लेवल कंटेंट है, तो आपको बता देंगे उधर से कैसे बनाना है और कैसे 2 मंथ स्टैक के एकदम भारी प्रोजेक्ट डालने हैं। क्लियर? इसके बाद लिखो टू वेरी हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ऑफ पाइथन, डिजेंगो, फ्लास्क एंड रिलेटेड। वो सारी चीजें भी कैसे करनी है डेव मेंटर बता देंगे, बट M1 M2 P1 P2 होना चाहिए।
अगर मर्न और पाइथन का इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव टाइप के रोल्स में अप्लाई रेगुलरली किया जा रहा है तो। क्लियर। अब लिखो जावा बेस्ड रेज्यूमे। दूसरा रेज्यूमे तुम जावा बेस्ड बनाओगे, कौन सा बेस्ड बनाओगे? ओके, तो मैं तुमको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तुम सोच रहे होंगे मैं जावा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 50% ऑफ ओपनिंग्स जावा में भी तो होती है ना, जावा रिएक्ट एंड ऑल दैट सुना होगा। ठीक है। और जावा आपको आता नहीं है, बट आपने क्या बोला, पूरा दिन पढ़ने को तैयार हो, तो फिर अगर जावा का रेज्यूमे बनाएंगे तो फायदा ये हो जाएगा कि उधर से भी इंटरव्यू आने लग जाएगा, नंबर ऑफ इंटरव्यूज बढ़ जाएंगे, मतलब सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली इंक्रीज हो गया। समझ गए ट्रिक? तो अब जावा रेज्यूमे में थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, बट अच्छा ये भी वर्थ इट है। जब भी लाइक अगर कोई कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है, और तुमको पता है उनको जावा रिएक्ट चाहिए, थोड़ा भी हिंट लग रहा है, तो प्लीज ये वाले रेज्यूमे से अप्लाई करना। मैं तुमको ये नहीं समझा रहा हूँ कि कौन सी जॉब आईडी कौन सी कंपनी में कौन से रेज्यूमे से अप्लाई करना है, उतना मैं सोच रहा हूँ कि थिंकिंग स्किल्स तुम्हारे पास है। क्लियर। तो अगली को जावा रेज्यूमे में क्या करना है, J1 J2 R1। सो बेसिकली दो जावा स्प्रिंग बूट के एकदम भारी भरकम प्रोजेक्ट्स विद द लाइव लिंक, गिटहब लिंक, और एक रिएक्ट का एकदम भारी प्रोजेक्ट। ये डेव मेंटर पूरा एंड टू एंड बता देगा डेव कोर्स में से कैसे करके डालना है। क्लियर। अब इसका जो अंदर वर्क एक्सपीरियंस होगा उसमें बहुत भारी फैब्रिकेशन करना पड़ेगा, तो लाइक आपको इधर दिखाना पड़ेगा कि 50% वर्क क्या कहते हैं जो रियल में किया था वो वाला, और 50% आपको बोलना पड़ेगा कि ये कंपनी में आपको जावा स्प्रिंग बोर्ड रिएक्ट की ट्रेनिंग मिली थी और उस पर भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे। क्लियर। और आईटी जॉब एक्सेस का भी आप थोड़ा रिएक्ट और जावा स्प्रिंग बोर्ड में फैब्रिकेट कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बाकी चीजें जो इन दोनों में कॉमन है वो है विच आर द गुड गुड डीएसए प्रोफाइल्स एंड ऑल दैट। क्लियर। अब लिख लो माइंडसेट। तो माइंडसेट के लिए ना बहुत सारी चीजों का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। सो मैं एक स्पेशल वीडियो दूंगा, उसको देख लेना याद से। क्लियर। बेसिकली बुक में लिख दो नो कॉम्पिटिशन। क्या है कि मुझे पता है वीआईटी में हर एक दोस्त और हर एक जान पहचान वाले को कोई ना कोई जॉब लगी गया होगा, तो उनको देख के बहुत दिमाग में दुख हो सकता है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम दूसरों को थोड़ा दिन के लिए देखना बंद कर दो। तो बुक में लिखो स्टॉप आस्किंग अदर पीपल अबाउट देयर जॉब एंड देयर एलपीए एंड देयर सैलरी एंड वेयर दे गॉट सिलेक्टेड फॉर सम डेज अंटिल यू योरसेल्फ गेट अ 10-15 लाख जॉब। जब तक खुद को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है तो दूसरे को मत पूछो, बहुत ज्यादा दुख होता है। क्लियर। तुम जितना नहीं पूछोगे उतना तुम्हारा माइंड फ्री रहेगा। क्लियर। और माइंड फ्री रहेगा तो कुछ काम कर पाएगा, नहीं तो माइंड सिर्फ रोता रहेगा और काम नहीं करेगा। क्लियर। हम लोग को कभी कभी बाहर से ऐसा बहुत लगता भी है कि नहीं मैं तो बहुत मैच्योर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बार बार दूसरों का देख के फर्क पड़ता है, इसलिए नहीं देखना है। क्लियर। ठीक है। अब दूसरा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी भेजूंगा, चलो, और मॉन स्टैक फैब्रिकेशन के भी कंटेंट भेजूंगा और जावा स्प्रिंग बूट फैब्रिकेशन का भी कंटेंट भेजूंगा। क्लियर। अब लिखो डीएसए। डीएसए में देखो तुम्हारा लीड कोड पे रेटिंग 1400 है, और वो भी ऐसा वैसा ऊपर नीचे जा रहा है, और ग्रीन वाला ग्राफ भी नहीं है आपका लीड कोड पे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको प्री रिक्विजिट कोर्स करना है। कौन सा कोर्स करना चाहिए? ये रहा प्री रिक्विजिट कोर्स। ये मैंने आपको लिंक दिया, आपको आप आई होप आप इतने सक्षम हो कि इसका लिंक खुद से ढूंढ लोगे कहाँ है किधर है। ठीक है। हाँ, इसको स्टार्ट करो। अभी मुझे पता है कि पास्ट के कंपैरिजन में अभी मैंने प्री रिक्विजिट कोर्स बहुत बड़ा कर दिया है, राइट? तो भी ट्राई करो कि 2 to 5 डेज में ही कंप्लीट हो जाए। क्लियर। इसको करने से माइंड में बहुत स्ट्रेंथ आता है, और हर टॉपिक का अलग अलग सेपरेट सेपरेट डॉक्यूमेंट रिवीजन डॉक होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा लिखो दूसरी चीज जो लाइफ में करनी है जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज जो लाइफ में करनी चाहिए जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा वो चीज है डेली गोइंग टू कुमार केसर क्लास ऑफ डीएसए ओएसीपी एंड डेली सबमिटिंग द कोड आफ्टर द क्लास। लास्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको लास्ट टाइम जैसे नहीं, आपको हर दिन क्लास में जाना है और हर दिन क्लास के बाद कोड सबमिट करना है। इससे माइंड थोड़ा मोटिवेटेड रहता है और थोड़ा एक मसल मेमोरी डेवलप्ड होती है कि कभी भी कुछ कोड करना है तो जल्दी से कोड कर पा रहे हो। वही चीज इंटरव्यू में और ओए में झलकेगी। क्लियर। यस सर, लाउडली और कॉन्फिडेंटली बोलो। ठीक है, ये वाली चीजें भी क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे थे वो है इसके बाद जो प्रो प्लान है उसको ओपन करना है। ठीक है, लाइक इफ आई ट्राई टू ओपन, तो लाइक अगर मैं प्रो प्लान में नीचे स्क्रॉल करूं तो ये तो लाइक वेबसाइट अवेलेबल है, बट ये डॉक्यूमेंट में आपको दिख रहा है लिंक 1 एंड लिंक 2। तो ये लिंक 1 लिंक 2 को आपको एक बार देख लेना है। क्लियर।
क्योंकि इसके अंदर बताया है कि आपके पास कम टाइम है तो कैसे सिर्फ 20% प्रो प्लान करके अपना काम चलवा ले। तो लिंक वन लिंक टू डॉक को गो थ्रू कर लेना जब प्रीरिक्विजिट कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्लियर? ठीक है, ये वाली चीज भी हो गई। और बस यही फिलहाल इसके लिए इतना इतना ही करना है। जब तुम्हारा मन हो कि सर मुझे 15-20 लाख के अब ऊपर जाना है, मेरे को ये सब मिल रहा है सर, या कोई बहुत महंगी कंपनी का कुछ आ रहा है, तब मुझे बोलना, तो मेरे पास और भी हैवी डीएसए और ईसीबी प्लान भी पड़ा होता है। क्लियर? पहले प्री रिक्विजिट कोर्स करना है, फिर लिंक वन लिंक टू डॉक को गो थ्रू करना है, तो सब समझ आ जाएगा लाइफ में क्या करना है। क्लियर? अब इसके अलावा दूसरी चीज लिखना चालू करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे केस में। क्या कहते हैं, एलआरओ। तो बेसिकली आपका एलआरओ बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पता है ना लिंक्डइन कोर्स किधर है? सो मैं चाहता हूं कि आप लिंक्डइन कोर्स को पूरा कंप्लीट कर दो। क्लियर? लाइक आपके लिंक्डइन में टाइटल में लिखा होना चाहिए एसडी इंटर्न आईटी जॉब एक्सेस एंड अदर कंपनी। फिर डीएसए के बहुत सारे कीवर्ड्स होने चाहिए, जावा डेव के होने चाहिए, पाइथन डेव के होने चाहिए, मर्न डेव के होने चाहिए। आपके फीचर सेक्शन में आपका रेज्यूमे होना चाहिए था, गिटहब होना चाहिए था, और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी। और डेली रेगुलरली आपको पोस्ट करना है डीएसए पर, ओए पर, सीपी पर, डेव पर, जॉब हंटिंग पर, फिर मतलब आपका प्रीवियस इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस पर। कुछ ना कुछ होता ही रहना चाहिए ताकि कनेक्शन, फॉलोवर्स और नेटवर्क इंक्रीज होता रहे। क्लियर? तो लिंक्डइन कोर्स ढूंढ के कर लोगे और मुझे लिंक्डइन रिव्यू के लिए भेज दोगे कुछ दिनों में। आर का मतलब रेज्यूमे कोर्स, मुझे पूरा रेज्यूमे कोर्स करके चाहिए। करंटली आपके रेज्यूमे में बहुत प्रॉब्लम है, आज ही रेज्यूमे कोर्स करो। जो बेस्ट टेम्पलेट उसमें दे रखी है उसको डालो, और बाकी सारी पर्सनल स्किल्स और वो सारी चीजें हटाओ। क्लियर? दो दो रेज्यूमे मैंने बोले, दो दो रेज्यूमे मुझे एज पर रेज्यूमे कोर्स करके 2-3 दिन में रिव्यू के लिए चाहिए ताकि शॉर्टलिस्टिंग इंक्रीज ऑफ कैंपस में। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट वो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑफ कैंपस कोर्स। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? तो मेन कोर्स के अंदर खुद से ढूंढ लोगे ना 50 घंटे का ऑफ कैंपस कोर्स किधर है। बिना कोई शॉर्टकट किए एक एक डॉक, एक एक वीडियो पढ़ना है, पूरा दिमाग क्लियर हो जाएगा कि हर हफ्ते 5-5 इंटरव्यू कैसे लाना है। क्लियर? इसके अलावा लिखो अटेंड ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होगा सैटरडे संडे 7 बजे, आपको अटेंड करना है। क्लियर? लिखो रिमाइंड कुमार के सर टू मेक यू अटेंड अ पर्सनल सेशन विद ऑफ कैंपस ट्रेनिंग मैनेजर दिस वीकेंड और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड। क्लियर? ये ऑफ कैंपस कोर्स और ट्रेनिंग करने से अपने आप लाइफ सेट हो जाती है। क्लियर? लिखो बी रेडी टू ट्राई एट 10-20-50 कंपनीज ऑन अ डेली बेसिस फॉर रेफरल एंड क्या कहते हैं, रेफरल एंड डायरेक्ट अप्लाई। दो दो रेज्यूमे का ट्रिक याद है ना, क्या करना होता है? और हर resume वन ईमेल आईडी फोन नंबर, अनदर रेज्यूमे अनदर ईमेल आईडी फोन नंबर, वन डायरेक्ट अप्लाई, वन ट्राइंग फॉर रेफरल। सारी ट्रिक्स पता है ना? राइट? ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर से होमवर्क वीडियोस में देख लेना अगर कुछ भूल गए हो तो। क्लियर? अब ये हो गया, वो हो गया। अब लिखो कितने घंटे रोज क्या करना चाहिए। सो लिखो डेली नाइट 10 PM मैसेज कुमार के सर, हर रात को 10 बजे मैसेज करके ये बताना है कि कितना काम किया उस दिन, ताकि तुम कभी भी रिलैक्स कर ही ना पाओ। क्लियर? दूसरा लिखो कि क्या कहते हैं, 5 आवर डीएसए ओईसीपी मंडे टू फ्राइडे एंड साइमल्टेनियसली मेक द रिवीजन डॉक्यूमेंट मंडे टू फ्राइडे। क्लियर? फिर लिखो सैटरडे संडे रिवीजन करो जितना भी पढ़ाई किया है उस चीज का। क्लियर? ट्राई करो लीगली विदाउट एनी एआई टेलीग्राम यूज, तुम 1800 रेटिंग क्रॉस करने का ट्राई करो लीड कोड पे। क्लियर? 500 प्लस क्वेश्चन भी करने का ट्राई करो। क्लियर? और आराम से 1800 प्लस हो जाता है। क्लियर? अब ये भी हो गया। अब लिखो उसके अलावा डेली 2 आवर फुल स्टैक डेव करना पड़ेगा। क्लियर? जावा डेव, मर्न डेव, पाइथन डेव वगैरह वगैरह। क्लियर? वो डेव मेंटर बता देंगे। क्लियर? इसके अलावा क्या कहते हैं, डेली 1 to 2 आवर एलआरओ करना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा लिखो डेली 1 आवर, डेली तो नहीं, सैटरडे संडे को 1 आवर सीएस फंडामेंटल कोर्स रिवाइज कर लिया करो। ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही करना है, बट एक एक्स्ट्राज में कुछ चीज लिख दो, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, अगर तुमको टाइम मिलता है तो सैटरडे संडे को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ठीक है? तो जितने भी टेक्नोलॉजीज होती है उन सबके इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की अभी हमने अलग से लिस्ट बना के रखी है डेव कोर्स में। लाइक रिएक्ट, जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस, मोंगोडीबी, जावा स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, जावा थ्योरेटिकल प्रेप, उन सबको थोड़ा मेमोराइज करना और समझने का ट्राई करो, क्योंकि मिड साइज स्टार्टअप्स इंटरव्यू में वो चीजें पूछेंगे। क्लियर?
एक्स्ट्रा में आ गया। जब ये सब हो जाए तभी तुम डेव मेंटर को बोलना कि सर एलएलडी प्लस मशीन कोडिंग प्लस एचएलडी का भी कुछ प्लान दे दो। अभी तो तुमको कोई जनरली इतना पूछेगा नहीं एलएलडी मशीन कोडिंग, बट मीशो, फोन पे, इन सब में अगर इंटरव्यू लग गया, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, तो ये लोग पूछेंगे। ठीक है, क्लियर। अब ये वाली चीज हो गई, और वो यस सर लाउडली और कॉन्फिडेंटली बोलो। लिखो फॉलो ऑल द कोडिंग इंटरव्यू एटिक्वेट, लिख दिया। अब लिखो अप्लाई ट्रिक, आपको ध्यान से सीखना है और सबसे ज्यादा अप्लाई कहां करना है, लिखो वेलफाउंड.com लिख दिया, नौकरी.com लिख दिया, स्पेशल कंपनीज का जो लिस्ट बना के रखा है ऑफ कैंपस कोर्स में वो इंडीड.com, इंस्टा हायर, और भी चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट वाले, लिंक्डइन भी वन ऑफ देम है। बट बाकी सब में क्या है कि अगर सही से कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड मैसेजिंग रिक्रूटर को कर रहे हैं ना, तो इंटरव्यू आता ही आता है। क्लियर, अज्यूमिंग तुम मेरा वाला रेज्यूमे, कोर्स वाला रेज्यूमे यूज कर रहे हो। क्लियर। अब देखो, वंस यू क्रॉस 500 क्वेश्चंस, तो मुझे मैसेज करना चालू करो रेफरल के लिए। मतलब मेरे पास महंगी महंगी कंपनियों के रेफरल होते हैं, तो अगर 500 डीएसए क्वेश्चन लीड कोड पे कर लिया और तुमको लगता है तुमको डीएसए आता है, तो उसके रेफरल के लिए मुझे भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता ही है हमारे पास अब रेफरल सिस्टम स्ट्रांगली क्रिएटेड है। क्लियर। लाइक कंपनी का नाम बोल देता हूँ, अमेजॉन, क्वालकॉम, वीजा, पेपाल, मीशो, इन सब के रिलेटेड या यही कंपनीज का रेफरल चाहिए होता है, तो मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है? अब और एक चीज लिखवा रहा हूँ, वो भी लिख दो बुक में। प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस क्या कहते हैं, गुड माइंडसेट। ये चीज बुक में लिख दो, लिख दिया। whenever confused or whenever not understanding something, contact कुमार के सर immediately, लिख दिया। अब आपको डेव मेंटर से मिलना है और ऑफ कैंपस ट्रेनिंग मैनेजर से अपना सेशन करवाना है, और हर रात को 10 बजे मुझे अपडेट देना है। और जैसे एलआरओ कोर्स में बताया है, वैसे 100-200 जगह रोज ट्राई करने में घुस जाना है। क्लियर। हाँ, ऐसे ही रुके रहो 1 मिनट।